Hello, students. We are starting with the fourth chapter, Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle from the book Snapshot. First of all, a little bit about the lesson. It is about an incident from the life of Albert Einstein. He was looked as a misfit at the school because he could not cope up with the conventional system of education. He was different from the other boys of his age and he hated the atmosphere at the school. And he knew that he would surely fail in the exam. He did not like to study, he did not want to stay there in that school atmosphere, and he was very much disappointed when he could not achieve what he wanted. He was very much sad that the teachers did not think according to the student point of views. What happened in the chapter? Now we are starting with it. It is starting from here. In what year, Einstein asked the history teacher, did the Prussians defeat the French at Waterloo? It is the history class going on and the history teacher is asking Einstein, in what year did the Prussians defeat? It is a common question asked by a teacher and Einstein replied, I don't know, sir. Why don't you know? You have been told it often enough. कि तुम्हें क्यों नहीं पता इसका आंसर? कितनी बार तो बताया है. I must have forgotten. This is a reply by Einstein. Did you ever try to learn? Asked Mr. Braun. Mr. Braun is the name of the history teacher. Albert replied that he did not try to learn. He replied with his usual unthinking honesty. He was very honest and he just replied with honesty. Why not? The teacher is asking, क्यों नहीं तुमने try किया learn करने का? And Albert is replying now, I can't see any point in learning dates. One can always look them up in a book. कि मुझे डेट्स लर्न करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अगर किसी को डेट्स ही देखनी है, कोई डेट देखनी है, इंपॉर्टेंट डेट, दैट कैन बी लुक्ड अप इन अ बुक. कि बुक खोलो और उसमें दिख सकती है. मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट. ही कुड नॉट से एनीथिंग. यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट. मुझे हैरानी होती है तुम्हें देखकर. डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स. If you want to see anything, we can see in the books. That applies to all the facts you learn at school. It means if you want to see any fact, whatever you are learning at school, you can see them into books. Then what is the need of the books? What is the need of the schools or what is the need of the teachers? So, Albert is replying, yes sir, we can always look the things in the books. Then I suppose you don't see any point in learning facts. तो टीचर कहता है कि अगर मान लो हर चीज़ हम बुक्स में देख सकते हैं तो फिर इट मीन्स तुम्हें तो फैक्ट्स को लर्न करने में भी कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता होगा, कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता होगा. एंड अल्बर्ट सेड फ्रैंकली सर आई डोंट, कि मुझे कोई लॉजिक दिखाई नहीं देता. इट मीन्स मुझे लगता है कि फैक्ट्स को भी लर्न करने का कोई मतलब नहीं है. इफ़ दे आर फैक्ट्स, ठीक है, हम जानते हैं उनको, हम उन्हें लर्न क्यों करें. देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल. अब टीचर कहता है फिर तो तुम एजुकेशन में भी बिलीव नहीं करते. ओ यस सर आई डू. अल्बर्ट कहता है नहीं सर, मैं एजुकेशन में बिलीव करता हूँ. आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन. कि मुझे सिर्फ ये लगता है कि जो फैक्ट्स हैं उनको लर्न करना ही एजुकेशन नहीं है. इन दैट केस एट द हिस्ट्री टीचर विद हैवी सार्काज्म, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन. नाउ अब हिस्ट्री टीचर एकदम गुस्से में भरा हुआ है एंड ही इज सेइंग विद टॉन्ट. बहुत अच्छे से टॉन्ट करके उसने बोला कि ठीक है फिर जरा हम भी तो सुने कि आइंस्टीन थ्योरी क्या है एजुकेशन की, कि आइंस्टीन अपनी थ्योरी हमें बताए. अल्बर्ट फ्लश्ड. अल्बर्ट का मुंह जो था रेड हो गया एकदम शर्म के मारे. आई थिंक इट्स नॉट द फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज. बट ही इज रिप्लाइंग, स्टिल ही इज रिप्लाइंग. कहता है कि मुझे लगता है फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन थिंग इज दैट आइडियाज आर इम्पोर्टेंट. I don't see the point in learning the dates of battles or even which of the armies killed more men. कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता इससे, मुझे लगता ही नहीं इसमें कोई पॉइंट भी है कि हम ये याद करें कि कौन सी लड़ाई कब हुई थी, उनकी डेट्स को याद करें, या किस आर्मी ने कितने ज़्यादा आदमी मारे, इस चीज़ को हम याद करें. आई वुड बी मोर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर. मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज़ में ज़्यादा होगा कि वो सोल्जर्स आपस में एक दूसरे को मार क्यों रहे हैं. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट.
That's enough. Mr. Brown's eyes were cold and cruel. He was very angry at this time. We don't want a lecture from you, Einstein. You will stay in for an extra period today. Although I don't imagine it will do you much good. Now he is punishing, the teacher is punishing Albert, but still he is saying कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे लगता नहीं है कि इससे तुम्हें कुछ फ़र्क भी पड़ेगा, इस पनिशमेंट से, इस एक्स्ट्रा पीरियड से तुम्हें कुछ अच्छा फ़ायदा भी होगा. इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर. इससे स्कूल को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. यू आर अ डिसग्रेस, यू आर अ इंसल्ट टू अस. आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, कि तुम आते ही क्यों हो स्कूल में. इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट, कि मेरी इच्छा नहीं है ये मैं यहाँ पर आता हूँ. इट मीन्स ही इज सेइंग अबाउट दैट हिज पेरेंट्स वांटेड हिम टू गो टू स्कूल. बट हेयर ऑल्सो दिस रिप्लाई ऑल्सो मेड द टीचर वेरी मच एंग्री. देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, कि फिर तो तुम एक बहुत ही शर्म, जिसे बोला जाता है शर्मनाक लड़के हो, अनग्रेटफुल बॉय हो, जिसे शर्म ही नहीं आ रही अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रेटफुल भी नहीं हो पा रहे हो तुम. एंड यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ. आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, तो तुम अपने फादर को बोल दो मुझे यहाँ से ले जाएं. एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, और इस लाइन पे एल्बर्ट को बड़ा हेल्पलेस सा फील हुआ. व्हेन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून, नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे. कि अब एल्बर्ट जो है शाम को भी बड़ा मिजरेबल फील कर रहा था, इसलिए नहीं कि उसका आज का दिन बुरा है, बिकॉज उसके डेली ही दिन बुरे होते थे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस नेक्स्ट मॉर्निंग. उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस लिए थी कि उसे दोबारा से अगले दिन भी वापस उसी हेटफुल प्लेस पर जाना है. विच इज़ द हेटफुल प्लेस फॉर एल्बर्ट आइंस्टीन, कि स्कूल जाना है उसे. ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, कि काश मेरे फादर मुझे ले जाएं यहाँ से स्कूल से, बट उन्हें भी पूछना कोई लॉजिक नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है. मुझे पता है उनका आंसर क्या होगा. ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी. ही वुड हैव टू से स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा. जब तक मुझे डिप्लोमा नहीं मिल जाता तब तक मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा. गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप. लॉजिंग्स मीन्स वेयर ही वॉज लिविंग, द प्लेस वेयर ही वॉज लिविंग, कि अब जब वहाँ पे जा रहा है वो अपने रूम पर, उससे भी उसे खुशी नहीं हुई. His father had so little money to spare that Albert had been found a room in one of the poorest quarters of Munich. कि उसके फादर के पास बहुत कम पैसे थे, तो उसको बहुत एक पोरेस्ट एरिया में उसको रूम मिला था रहने के लिए. He did not mind the bad food and lack of comfort. लेकिन उसे जो खाना है उससे प्रॉब्लम नहीं थी, या उसको कंफर्टेबल चीज़ें नहीं मिली, लग्जरियस लाइफ नहीं मिल रही, इस चीज़ से प्रॉब्लम भी नहीं थी. और इवन द डर्ट एंड स्क्वैलर, स्क्वैलर होता है डर्टीनेस, गंदगी, उससे भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डस्ट वगैरह से भी. बट ही हेटेड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस. लेकिन वहाँ का जो वायलेंस थी, जो मारपीट होती थी, जो लड़ाई झगड़ा होता था, उससे वो हेट करता था. हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली. उसकी मालकिन जो थी, मकान मालकिन, अपने बच्चों को रेगुलरली मारा करती थी. एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर. और हर सैटरडे को उसका हस्बैंड ड्रंक करके आता था, ड्रिंक करके, एंड ही यूज्ड टू बीट हर. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस इन दैट एरिया, in his room also, in his house also, where he was staying. But at least you have a room of your own, which is more than I can say, said Yuri when he called round in the evening. लेकिन अब इवनिंग में शाम को वो अपने फ्रेंड से मिला. यूरी was the friend of Albert Einstein. तो यूरी को यही बता रहा है, और यूरी कहता है लेकिन कम से कम तुम्हारे पास अपना रूम तो है, which is more than I can say, जो मेरे पास नहीं है. At least you live among civilized human beings, even if they are all poor students, said Albert. Albert कहता है चलो फिर भी काश, ये तो अच्छा है ना कि तुम सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स में रहते हो, चाहे वो सभी के सभी पुअर हैं, बट कम से कम वो लड़ाई तो नहीं करते, वायलेंस तो नहीं क्रिएट करते. यूरी इज रिप्लाइंग दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड. वो सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं. डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूएल. ड्यूएल होता है दो लोगों की लड़ाई. तुमने सुना नहीं था कि लास्ट वीक ही एक मारा गया था 2 लोगों की लड़ाई में. Now Albert is asking about that incident. Then what happens to the one who killed him? कि उस जो दूसरा जो था जिसने मारा था उसका क्या हुआ. यूरी इज रिप्लाइंग नथिंग, ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं हुआ. ही इज इवन प्राउड ऑफ इट. उसे तो अपने ऊपर गर्व है, गुरूर है कि उसने दूसरे पर्सन को मार दिया. हिज ओनली वरी इज दैट द अथॉरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूल्स. He is upset about this because he hasn't a single scar on his face to wear for the rest of his life as a badge of honor. कि अब उसको सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, उसकी वरी क्या है
कि अथॉरिटीज़ ने उसको बोल दिया ही विल नॉट बी फाइटिंग एनी मोर फाइटिंग्स और एनी मोर ड्यूएल्स। और अब वो अपसेट है बिकॉज उसको एक भी स्कार, एक भी निशान नहीं लगा है उसके फेस पर चोट का, मारपीट का। वो निशान जो है उसको क्या लगता, बैज ऑफ ऑनर लगता, कि जैसे उसको एक अवार्ड सा मिल गया, उसको ऑनर मिल गया है। सो ही वुड बी वियरिंग दैट स्कार ऑन हिज फेस फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, बट ही हैड नॉट गॉट दैट स्कार। उसको वो निशान नहीं मिला है चोट का। exclaimed Albert, and these are the students. Albert is saying कि ये स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे ऐसे। well you will be a student one day, Yuri is saying तुम भी तो बनोगे। I doubt it, said Albert glumly. sadly बोल रहा है मुझे नहीं लगता कि मैं स्टूडेंट बनूंगा भी। I don't think I will ever pass the exams for the school diploma. He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. यही चीज़ उसने अपनी एल्सा कजिन को भी बोली, एल्सा को, जब वो नेक्स्ट टाइम म्यूनिक में आई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, वैसे तो बर्लिन में रहती थी जहाँ पे उसके फादर का काम था, उसका फादर का बिजनेस था। लेकिन अब वो जब म्यूनिक आई तो अल्बर्ट ने उसको बताया कि मुझे डाउट है कि शायद मैं एग्ज़ाम्स पास नहीं कर पाऊँगा। आई एम श्योर यू कुड लर्न एनफ टू पास द एग्ज़ाम्स अल्बर्ट इफ़ यू ट्राइड। एंड शी सेड कि अगर तुम कोशिश करो तो तुम कर सकते हो। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर, हु गेट थ्रू मीन्स जो पास हो जाते हैं, जो क्लियर कर जाते हैं। कि तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड बच्चों को मैं जानती हूँ जो क्लियर कर गए। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉट। दे से मीन्स होता है टीचर्स, अथॉरिटीज़, कि वो कहते हैं कि तुम्हें कुछ लर्न करने की, या कोई बड़े एल्डर्स, कि तुम्हें कुछ जानने की नीड नहीं है, तुम्हें कुछ समझने की नीड नहीं है जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, बस उसको एग्जाम्स में बस एक रट्टा लगा के उस एग्जाम्स में रिपीट कर दो। दैट्स द होल ट्रबल, सेड अल्बर्ट, आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। और अल्बर्ट कहता है कि ये तो मेरी प्रॉब्लम है, मैं किसी भी चीज़ को रट नहीं सकता, लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनीवन कैन लर्न लाइक अ पैरट। एल्सा उसको समझा रही है कि कोई भी पैरट की तरह लर्न कर सकता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, बस ट्राई मत करो। एंड येट आई ऑलवेज, यू जस्ट डोंट ट्राई मीन्स कि तुम कभी ट्राई ही नहीं करते, तुमने ट्राई ही नहीं किया। अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम कर लोगे क्लियर। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, और हमेशा मैं देखती हूँ वैसे तो तुम्हारे हाथ में बुक होती है। एडिड एल्सा, व्हाट इज द वन यू आर रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो तुम? अ बुक ऑन जियोलॉजी। इट वॉज द आंसर ऑफ अल्बर्ट। जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, डू यू लर्न दैट? दिस इज questioned by Elsa and Albert is asking no, we have hardly any science at school. हमारे पास साइंस नहीं है स्कूल में। तो एल्सा कहते हैं फिर क्यों पढ़ रहे हो तुम इसे? बिकॉज आई लाइक इट, इजंट दैट अ गुड एनफ रीज़न? कि क्या ये एक रीज़न ठीक नहीं है कि बस मुझे ये पसंद है बुक पढ़ना ये वाली? एल्सा साइड, यू आर राइट ऑफ कोर्स एल्बर्ट, शी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प यू विद योर डिप्लोमा। अब एक गहरी सी सांस लेके एल्सा कहते हैं बट इससे तुम्हें डिप्लोमा थोड़े ना मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वाज म्यूजिक। अब साइंस के बुक्स का जो इंटरेस्ट बताया यहाँ पे कि अल्बर्ट को साइंस के बुक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, इसके अलावा उसका इंटरेस्ट जो था म्यूजिक में था। एंड ही प्लेड हिज वायलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। कि जब तक उसकी लैंडलेडी उसको आकर चुप नहीं कराती थी, रोकती नहीं थी, तब तक वो वायलिन बजाता रहता था। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व्स, शी सैड। वैसे तो वेलिंग होता है करहाना, किसी का रोना, तो यहाँ पे कहते हैं ये जो तुम बजाते रहते हो ना, ये मेरी नर्व्स पे जा रहा है, मेरा दिमाग खराब होता है इससे। देयर इज एनफ नॉइज इन दिस हाउस विद ऑल द किड्स हाउलिंग। वैसे ही इस घर में इतना शोर है इन बच्चों के चिल्लाने से। एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू पॉइंट आउट दैट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज शी हु मेड दैट हाउल। अब एल्बर्ट कहना तो चाहता है कि ये तो तुम हो, बच्चे नहीं, जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग, बट वो फिर भी चुप रहा। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हेयर, ही टोल्ड यूरी आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिक। कि मुझे यहाँ, अपने फ्रेंड को कहता है कि बस मुझे यहाँ से जाना है, बहुत हो गया, मैं 6 months यहाँ रह चुका हूँ। इट इज़ अब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। कि कितना अजीब लग रहा है मुझे इसी तरह चलते जाना है, बस इसी तरह स्टडी डेली, डे बाई डे पासिंग ऑन। इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी एंड एवरीवन्स टाइम। लास्ट में क्या होगा? सिर्फ मैं अपने फादर का ही पैसा वेस्ट कर रहा हूँ और सभी का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पास ही नहीं होऊंगा। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ आई स्टॉप नाउ। Now Yuri asked, then what will you do? I don't know, if I go to Milan, I am afraid my father will send me back. मिलान जाता हूँ तो मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे, अनलेस, जब तक कि एकदम से उसके माइंड में कुछ आइडिया आता है
एंड हिज आइज ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया. उसकी आइज शाइन करने लगती हैं एक आइडिया से, और वो यूरी से पूछता है, यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स, कोई तुम्हारा डॉक्टर फ्रेंड हो कोई. एंड यूरी रिप्लाइड, आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली. काफ़ी मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बट डॉक्टर नो. आई हैव नेवर हैड एनफ मनी टू गो टू वन. किसी डॉक्टर को नहीं जानता बिकॉज मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है. नाउ यूरी आज द रीज़न कि क्यों पूछ रहे हो तुम डॉक्टर के बारे में. सपोज सेड एल्बर्ट दैट आई हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन. एल्बर्ट कहता है कि ऐसा हो कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मुझे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मुझे डॉक्टर कह दे कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है. So it was the idea Albert Einstein had got in his mind that the doctor would say that he had got a nervous breakdown and he could take some break from the education. लेकिन यहाँ तक कि भी उसकी सोच जो है वो ये शो कर रही है how much he was disturbed while staying in this school environment. कि किस तरह का स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, जहाँ पे टीचर्स जो है, टीचर्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशन है दैट विल बी friendly enough so that teachers could know about the problems that a child or that a student is facing. We have done half of the part of this chapter. Rest of the part we will continue in the second part. I hope you have understood very well. Have a nice day.